Okay, so in previous class we have discussed normalization 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, or 4NF, 5NF. Slightly we have seen. The question in the exam will be from 1NF to BCNF. है ना? 4NF, 5NF will not be in the syllabus of the exam. Okay, but just we have discussed slightly 4NF, 5NF. Okay, so but you should prepare for 1NF, 2NF, 3NF, BCNF mostly, है ना? The question will be based on that. You will receive one table and then you will be asked to normalize that database or this table into a given particular or in a given format, or in a given normal form. Okay, like you can consider this is a table. Now check what is the current status of this table, and then you have to convert it into 2NF or 3NF. Like this type of questions may be asked to you, so you should prepare for that. Okay, in the last class, in the last exercise, we have discussed these kind of questions. Okay, now I'm again having one example for the normalization. You can check it. Okay, so these are a step-by-step approach. So here you can go with the normalization process. Okay, so in a database we are considering for the employee number, employee name, date of birth, department name, project code, project description, or project supervisor. So these tables we are considering, this database we are considering in a table. Now we have to normalize this database. Okay, so you can consider this is an unnormalized database. There we are not considering any normal form. So here you can consider employee number, employee name, date of birth, department code, department name, project code, project description, project supervisor. So this is just a table. Okay, so whenever you are going to normalize, so normalization basically we are having we are using for reducing the redundancy in the database. Okay, main focus is in the redundancy, and then we have to also eliminate the problem or resolve the problem of anomalies like insertion anomalies, updation anomalies, and deletion anomalies. These kind of problem we have to also solve with the normalization. Okay, सर आपकी स्क्रीन सर स्क्रीन शेयर नहीं किया आपने. oh sorry, I'm sharing again. Okay, sorry, thank you for reminding me. मैं सोच रहा था कि शेयर है. ओके, सो इससे पहले नॉर्मलाइजेशन में अपन ने सारी नॉर्मल फॉर्म्स तो कवर किया था, एक्सरसाइज भी किया था बहुत सारा. ओके ना, तो ये लास्ट क्लास में किया था. तो इसके रिकॉर्डेड लेक्चर भी है ऑनलाइन, मैंने यूट्यूब का लिंक भी शेयर किया कर दिया है, जहां पे मैं डाल देता हूँ, तो वो भी देख सकते हो अगर किसी को बाद में देखना. बाकी की स्लाइड भी मैं शेयर कर दिया हूँ, वो जो लास्ट लेक्चर का स्लाइड है तो वो भी शेयर कर दूंगा आज, है ना, और करेंट लेक्चर का भी कर दूंगा. ओके ना, सो देन यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर दैट. Okay, in today's class basically we are going to start with the exercise of the normalization, where one table is given to you and now you will be asked to normalize that data. Okay, so you can see the example. This is a table. Okay, this is table you can consider. Okay, so here whole data, employee number, employee name, date of birth, department name, project code, project description, all these in a single table, and this table is not normalized. Now you will be asked to normalize this data. Okay, or this table. Okay, so in this table, when we are going to normalize, we have to see is there any redundancy. Basically when we are going for the normalization, then we have to reduce the redundancy, and then we have to also eliminate the anomalies from the database, so that database will be normalized. Okay, so in this table, are you able to identify some redundancy in this database? Just I am asking to you. Yes. सर एम्प्लॉय नंबर 1 पे 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन और प्रोजेक्ट सुपरवाइजर है. या और बताओ सर. प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन और प्रोजेक्ट सुपरवाइजर हम बार बार रिपीट कर रहे हैं. ओके, मतलब बिल्कुल ये भी सही है. और बताओ डिपार्टमेंट नेम बिल्कुल सही. डिपार्टमेंट सी ऐसे अपन ये लिख रहे हैं ना, सी यस सर. तो सी मल्टीपल टाइम्स लिखा हुआ है. और यू कैन सी हियर आल्सो एम्प्लॉय नंबर. देखो एम्प्लॉय नंबर एक यहाँ पे 1 2 3 तक 3 एम्प्लॉइज हैं.
बट यहाँ पे 1 अगेन रिपीट हुआ है, तो ये प्राइमरी की एज नहीं बन रहा, तो यहाँ पे 1 को अगेन रिपीट किया, इट मींस इट इज अ रिडंडेंसी फॉर 1 आल्सो। यस सर। इज इट ओके? तो अभी यहाँ पे देखोगे तो कोई भी की नहीं है, कोई भी एक पर्टिकुलर कॉलम में आप एज अ की एज्यूम नहीं कर सकते हो। इज इट ओके ना? Yes, sir. ओके ना? तो यहाँ पे 1 की वैल्यू जैसे मैंने लिखा ना, एम्प्लॉय नंबर 1 2 3 और फिर से 1 आ गया, तो 1 में मैंने क्या ऐसा अलग इंफॉर्मेशन लिखा है जो डिफरेंट है फॉर 1 दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द फर्स्ट रो? project Project code, प्रोजेक्ट कोड से डिफरेंट हो रहा है। project description. प्रोजेक्ट कोड और प्रोजेक्ट सुपरवाइजर और प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन अपन बोल Yes, सकते सही। हैं। तो ऐसा हो सकता है, जैसे क्या होता है, मेरे पास 2 चीजें, एक एम्प्लॉय है ओके और प्रोजेक्ट है। इज इट ओके? तो एक एम्प्लॉय को मैंने एक प्रोजेक्ट दे दिया, ऐसा अज्यूम कर रहे हैं एक एम्प्लॉय एक प्रोजेक्ट, देन इट इज ओके, देन दिस रो विल बी एलिमिनेटेड, है ना, अगर एक ही एक देना है। बट ऐसा हो सकता है 1 एम्प्लॉय मे बी वर्किंग ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, so then how will we going to add this information? Then in order to add this information in the database, what you can do, you can put project, then first employee is working on project, just first project code and second project code. Is it okay na? So in that case what will happen, if you are putting this 2 here and the php here and sha here, then this is violating the condition of the 1NF। आपको याद है Yes, sir. 1NF की कंडीशन क्या होती थी? किसी भी कॉलम में मल्टीपल वैल्यूज नहीं हो सकती हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी रो। किसी रो में किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में मल्टीपल वैल्यूज आप स्टोर नहीं कर सकते हो। सो दैट इज वायलेशन ऑफ द कंडीशन ऑफ 1NF। इज इट ओके? So that's why we are considering, if you are not adding this row, that means you need to put this information here, so this is violating the condition of 1NF. If you are not violating, then in that case you need to add here, so it is adding redundancy. Okay na? So it is adding redundancy. So what we'll have to do in that case, you have studied that we need to create a separate table. Is it okay na? हम क्या करते हैं, सेपरेट टेबल क्रिएट करते हैं। आप देखना फर्स्ट एनएफ का जो है, फर्स्ट एनएफ में मैंने बताया था कि सेपरेट टेबल, वेयर वी हैव टू क्रिएट द सेपरेट टेबल, है ना, इन ऑर्डर टू नॉर्मलाइज द डेटाबेस। तो ये फर्स्ट एनएफ का देख सकते हो एग्जांपल, 2 टाइप का एग्जांपल मैंने दिखाया था फर्स्ट एनएफ में। ये टेबल था, यहाँ पे देखो मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। इज इट ओके? Yes, sir. तो ये मल्टीपल के लिए हमने क्या किया, इसको 2 टेबल्स में डिवाइड किया था। इज इट ओके? Yes, sir. So same thing we are going to do here. Here we are also dividing this table into multiple table, so that there should be less redundancy and data. Yes, हाँ कोई क्वेश्चन? नो सर। हेलो? नो सर। हाँ चलो ठीक है। ओके, तो ये अननॉर्मलाइज डेटा था, इसको हमने क्या किया, 2 टेबल्स में डिवाइड कर दिया। 1 टेबल इज वी आर कंसीडरिंग इट एज एम्प्लॉय टेबल, है ना, और दूसरा हम बोल सकते हैं कि हमने एक प्रोजेक्ट टेबल बना दिया। ठीक है, तो अब देखोगे यहाँ पे, देखो पहले तो एम्प्लॉय नंबर है, जब की बन गया सबसे पहले देखो जितने एम्प्लॉय थे वो सब यहाँ पे आ गए। ठीक है, डिपार्टमेंट कोड आ गया, यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम आ गया, ये सब आ गया। एक प्रोजेक्ट का टेबल हमने यहाँ पे बनाया है, जिसमें हमने क्या किया, एम्प्लॉय नंबर और प्रोजेक्ट कोड, इन दोनों को मिला के एज ए हमने क्या बोला है इसको, Primary key. की। ओके, यहाँ पे ये सिंगल एलिमेंटेड एज ए वर्किंग एज ए की। ठीक है, इसके बेसिस पे आप देखोगे रिडंडेंसी पहले जो आ रही थी, आईओटी आपको ये प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन सेपरेटली स्टोर करना पड़ रहा था, वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। मल्टीपल वैल्यू आप एक कॉलम में नहीं कर रहे हो, और यहाँ पे रिडंडेंसी इस वाले टेबल में एक एडिशनल जो रो डाल रहे हैं वो कम हो गई। हालांकि आप देखोगे इतना डेटा कम हुआ है, यहाँ पे कितना कम हो गया, ये वाला सर एम्प्लॉय नंबर तो अभी भी है ना, सिर्फ 4 रोज का डेटा कम हुआ। हाँ, तो इतना डेटा तो कम हो गया ना। Yes, sir. अभी इतना तो है, बट ये तो मानोगे ना, इतना तो है, ये मैं भी एग्री कर रहा हूँ। दैट मीन्स ये फुली नॉर्मलाइज नहीं है, तो ये फर्स्ट एनएफ में कुछ रिडंडेंसी कम हुई कि नहीं हुई, ये जो रिडंडेंसी थी ये वाली,
यस सर। ये तो कम हो गई ना, कुछ तो रिडंडेंसी कम हुई ना हमारी। ठीक है, अभी टोटल Yes, वैल्यू अगर अभी आप देखोगे तो टोटल वैल्यूज कितनी स्टोर थी यहाँ पे, 4 क्रॉस कितने टेबल है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स है ना, तो 4 क्रॉस 8 टोटल 32 वैल्यूज थी ना। यस सर। यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 3 क्रॉस 5 प्लस 4 क्रॉस 4, तो 15 प्लस 16 कितना आया, 32 आ रहा है, फिर भी सॉरी 31 आ रहा है, 31 आ रहा है। तो एक तो सिंगल सेम वाली वैल्यू एलिमिनेट, लेकिन ये जो प्रॉब्लम थी एक तो कॉमन वाली वो वैल्यू, वो प्रॉब्लम खत्म हो गया, यूनिक वैल्यूज बन गई हमारी, और जो टेंडेंसी है बहुत कम रिड्यूस, मतलब कुछ हद तक कम कर लिया हमने। लेकिन नाउ इन ऑर्डर टू फर्दर रिड्यूस द रिडंडेंसी, और क्योंकि इसमें और भी अभी भी रिडंडेंसी है, तो इसको फर्दर रिड्यूस करने के लिए हमारे पास फिर कौन से फॉर्म आती है नेक्स्ट वाली, 2NF. 2NF। तो 2NF में हमको इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट। So what is the condition of 2NF, that you have to check this table, is this in 2NF or not। आपको एक टेबल दिया जाए तो आप वैसे पता कर सकते हो कि ये 2NF में है कि नहीं है, बताओ। यस सर, किया तो था लास्ट टाइम। मैंने लास्ट टाइम पे बताया था आपको कि टेबल अगर दिया है तो आपको पता करना है कि वो 2NF में है कि नहीं है, या बताओ। लास्ट टाइम पे मैंने बताया था, याद हो तो। यस सर। देखो एक तरीका होता है कि इसमें अगर आपको 2NF में पता करना है, पहले तो ये बताओ 2NF में कब होता है कब नहीं होता है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द 2NF, कंडीशन ऑफ 2NF क्या है। मैं ये इसलिए थोड़ा थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूं जिससे आपको याद आ जाएगी, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा एग्जाम में। कंडीशन क्या है 2NF की, कंडीशन 2NF की ये थी कि अगर पार्शियल डिपेंडेंसी। बिल्कुल, अगर कोई की है तो की का अगर कोई पार्ट, की ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल एट्रीब्यूट से बनी हो सकती है, तो पहले तो डेटाबेस में सबसे फर्स्ट काम होता है कि हमको की आइडेंटिफाई करना, की कौन क्या है। की आइडेंटिफाई करने के बाद आप देखो की का कोई पार्ट, जिसको अपन बोलते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। की का पार्ट मतलब सपोज करो की हमारी ए और बी एट्रीब्यूट से मिलकर बन रही है, इट मींस कोई ऐसी डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए जहां पर ए टेंड्स टू कोई ऐसा एट्रीब्यूट हो, सी डी, ऐसा कुछ, सी और डी आर द नॉन की एट्रीब्यूट जो की के पार्ट नहीं है, और बी से ऐसा कोई डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। बट ये अलाउ है, ए टेंड्स टू बी और बी टेंड्स टू ए, ये अलाउड है। बट ये अलाउड नहीं होना चाहिए कुछ और सी और डी इस टाइप से कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो दैट इज नॉट अलाउड इन 2NF। 2NF. इज इट ओके। तो 2NF में हमको पार्शियल डिपेंडेंसी पता करना है। तो अब इसमें मेरे को ये बताओ, की तो हमको दिख रही है एक, क्यों भाई। यस सर। लेकिन ये याद रखना, जो हमको की दिख रही है, अगर क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो हमको की दिख रही है, जैसे इस वाली टेबल की बात करें, टेबल 1 और ये टेबल 2, तो अगर टेबल 1 की बात करें तो टेबल 1 में जो की हमको दिख रही है एम्प्लॉय नंबर, तो ये करेक्ट है कि एम्प्लॉय नंबर इसमें एक की है, ठीक है। बट इट इज कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी की। Whenever we are talking about key, that means we are talking about always candidate key, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट की है वो सारी आइडेंटिफाई करो, क्योंकि ये तो सिंगल एट्रीब्यूट से कैंडिडेट, ये प्राइमरी की बनी है, और जो कैंडिडेट की है ये तो सिंगल एट्रीब्यूट्स की है। जबकि सिंगल एट्रीब्यूट्स की होती है तो कभी भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं हो सकती। इज इट ओके। ये तो मैंने भी क्लास में बताया था, आपको भी समझ सकते हो कि पार्शियल कब होगी, जब कब की कंपोजिट एट्रीब्यूट से बनी, मतलब मल्टीपल एट्रीब्यूट से की बनी होगी। इज इट ओके ना। तो यहाँ पे पार्शियल तो हो ही नहीं सकती, तो हमको देखना दूसरा कोई की और बन रही है क्या इसमें, इसके अलावा एम्प्लॉय नंबर के अलावा। क्या आप बता सकते हो मेरे को कोई और की बन रही है क्या। बट सर बाकी जो कीज है वो भी सिंगल एलिमेंट ही है, लाइक एम्प्लॉय नेम हो सकता है हमारा बिल्कुल की। सही, बिल्कुल सही। और बताओ। डेट ऑफ बर्थ भी हमारे यहाँ पे की हो सकता है, सिंस वो भी बिल्कुल सही कह रहे हो, अलग है लेकिन डिपार्टमेंट कोड कैन नॉट बी अ की, की। ठीक है। डिपार्टमेंट नेम कैन नॉट बी अ की। इज इट ओके ना। यस। तो डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट कोड बोथ कैन बी अ की। नो सर। नहीं ना, नो, क्योंकि डिपार्टमेंट को अब इसके साथ में मिलाओगे तो की बन ही जाएगा, क्योंकि इन दोनों को मिलाओगे तो की बन जाएगा ना, क्योंकि यही की है ना ऑलरेडी। यस सर। तो डिपार्टमेंट को अब दूसरे एट्रीब्यूट के साथ में मिलाओ, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट नेम, क्या ये दोनों की बन सकते हैं। नो सर, 1 CE पे दो अलग अलग आंसर्स हैं हमारे पास। कौन से अलग अलग आंसर है।
1C पे सर राज और सुरेश दोनों मिल रहे हैं ना? 1C पे एक जगह राज आ रहा है, एक जगह सुरेश आ रहा है, दैट मींस दैट दीज एट्रीब्यूट्स कैन नॉट बी अ की। तो जो भी की बन रही है, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम एंड डेट ऑफ डेट आर इंडिविजुअली की है। तो कैंडिडेट की अब कितनी हो गई इसमें? एक नहीं है, कितनी हो गई? एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और डेट ऑफ बर्थ, है कि नहीं है? है? यस सर। तो Yes, इसका sir. मतलब इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी तो है ही नहीं। इज इट ओके? यस। अब इसमें देखो, इसमें हमारी कैंडिडेट की कैसे बनेगी? एम्प्लॉय नंबर और प्रोजेक्ट कोड। पी कोड। तो ये दो एट्रीब्यूट्स है, तो कोई ऐसी डिपेंडेंसी बन रही है क्या जिसमें एम्प्लॉय नंबर से हम किसी को डिटरमाइन कर पा रहे हो? देखो, एम्प्लॉय नंबर की बन रही है क्या? एम्प्लॉय नहीं नंबर से सर, कोई क्योंकि No, sir. 1 के लिए 2 वैल्यूज आ रही 1 के लिए मल्टीपल वैल्यूज आ रही है हमारे पास। हाँ, तो नहीं, डिपेंडेंसी बन रही है क्या कोई ऐसी? एम्प्लॉय नंबर टेंड्स टू, इस टाइप की डिपेंडेंसी बन रही है क्या? एम्प्लॉय नंबर टेंड्स टू प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, या एम्प्लॉय नंबर टेंड्स टू प्रोजेक्ट सुपरवाइजर, ऐसा कोई बन रहा है? सर प्रोजेक्ट कोड टेंड्स टू प्रोजेक्ट सुपरवाइजर। बिल्कुल, प्रोजेक्ट कोड में 1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे पटेल है, यहाँ पे 2 के करस्पॉन्डिंग शाह है, 1 के करस्पॉन्डिंग पटेल है, 2 के करस्पॉन्डिंग शाह है। इट मींस ये डिपेंडेंसी बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? यस सर। इट मींस अगर ये डिपेंडेंसी बनेगी और प्रोजेक्ट कोड इज अ पार्ट ऑफ द की, इट मींस इट इज अ पार्शियल डिपेंडेंसी। हो गई कि नहीं हो गई पार्शियल? यस सर। जब ये पार्शियल है, इट मींस इट इज नॉट इन 2NF। 2NF में नहीं है, तो इसको 2NF में आप कन्वर्ट करोगे। ठीक है ना? तो ये आइडेंटिफाई करना, पता करना आपको आना चाहिए। ठीक है ना? इट इज ओके ना? देखो, फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है तो आराम से आप पता कर लेते हो, वो मेथड मैंने अलग बताया आपको। ठीक है ना? और मैंने आपको ये भी बताया, टेबल दिया हो तो डिपेंडेंसी कैसे बनानी है वो भी पता होना चाहिए। इज इट ओके ना? ठीक है, देन आई थिंक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, है ना? यस सर। ओके, तो 2NF में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये डेटाबेस था। अब देन नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इन 2NF। ठीक है, यही था ना ओरिजिनल? अब Yes, इसको sir. वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इन 2NF। ये तो हमारा टेबल एज इट इज है, इसमें तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए। नो सर। ठीक है, दूसरा डेटाबेस आया, इसमें क्या चेंज होगा? अच्छा, 2NF में कन्वर्जन का प्रोसेस क्या होता है ये याद करो पहले, तब ये भी आप खुद से बनाना सीख जाओगे टेबल, कि कौन सी टेबल बनेगी, क्या बनेगी। सर जो डिपेंडेंट होते हैं उनको अलग कर देते हैं ना? बिल्कुल, जैसे अपना पास एक प्रोजेक्ट कोड से आ रहा था ना, पी कोड टेंस टू क्या आ रहा था? प्रोजेक्ट सुपरवाइजर आ रहा था ना। यहां से देख सकते हो ना, प्रोजेक्ट कोड से हमारा प्रोजेक्ट सुपरवाइजर आ रहा है। प्रोजेक्ट कोड से क्या प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन भी आ रहा है क्या? यस सर। ये Yes, sir. 1 से 2 से PHP, 1 से IoT, 2 से PHP। तो ये भी एक्चुअली हमारी पार्शियल डिपेंडेंसी हो गई ना? यस सर। हो गई। तो इन दोनों को उठाएंगे सेपरेट, ये और ये, एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों को सेपरेट उठाओ। तो इन दोनों को सेपरेट उठाया, प्रोजेक्ट कोड अलग लेके आया, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोजेक्ट सुपरवाइजर, इन दोनों को लेके आ गए। तो 1 के करस्पॉन्डिंग IoT है, 2 के करस्पॉन्डिंग PHP, और यहाँ पे पटेल और PHP में सा आ रहा है, तो ये सारे मैच कर रहा है। इसको उठा के इनने एक नई टेबल बना ली। इज इट ओके? यस सर। Yes, sir. ठीक है, कैसे बनाना है? जो प्रोजेक्ट कोड है, तो प्रोजेक्ट कोड का आप क्या करो, सीधा सीधा पी कोड का क्या निकालो? क्लोजर निकालो। पी कोड का क्लोजर में पी कोड आएगा, और पी कोड से क्या क्या आ रहा है? प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन और प्रोजेक्ट सुपरवाइजर, ये आ रहा है ना। तो ये टेबल एक अलग बनेगी तीनों एट्रीब्यूट्स की, क्लोजर निकालने के बाद। इज इट ओके? यस सर। Yes, ये sir. टेबल सेपरेट आप बना लो, और उनका डेटा जो रखा है वो यहाँ पे डाल दो। ठीक है, अब जो रिमेनिंग टेबल क्या बच गई अपनी? एक तो एम्प्लॉय नंबर को हमें ऐड करना है, तो एम्प्लॉय नंबर, और यहाँ पे जो की है हमारी क्या हो गई? प्रोजेक्ट कोड हो गया। Project code, sir. प्रोजेक्ट कोड और एम्प्लॉय नंबर, इन दो जो बचे हुए हैं, इन दोनों को उठा के एक नई टेबल बन जाएगी, क्योंकि ये की प्रिजर्व करके रखना है ना ये वाली तुमको। यस सर। तो ये सेपरेट अलग बना लो, ये दोनों बन गई। ठीक है, Yes, क्लियर हो गया? yes, sir. यहाँ पे कोई डाउट हो अभी तो बता सकते हो, क्योंकि 2NF में कैसे कन्वर्ट करते हैं।
हालांकि इसकी स्टेप्स पीछे जो 2NF पढ़ाया था उसमें मेंशन भी है, लेकिन फिर भी अभी आप यहाँ पर रिपीट बता सकते हो, कोई समझ में नहीं आ रहा है तो कोई चीज यू कैन टेल मी। इज इट क्लियर? यस सर। धीरे से बोल रहे हो आप लोग। ये सही वाला समझ में आ गया। समझ में आ गया ना? अच्छा, अब हमको 2NF के बाद अभी भी रिडंडेंसी दिख रही है? देखो रिडंडेंसी तो अभी भी होगी, थोड़ा मोड़ा कहीं ना कहीं तो होगी, ठीक है ना। जैसे अभी आप देख सकते हो यहाँ पे भी दिख रहे हैं ना हमको, ये रिपीट कर रहे हैं बार बार, तो ये रिडंडेंसी तो है, Yes. है कि नहीं है? तो ये तो रिडंडेंसी आप मान सकते हो ना, कोई वो नहीं है। और दूसरा आप इसमें भी आप देख सकते हो, ये चीज रिपीट कर रहे हैं हम डिपार्टमेंट के लिए, तो ये भी रिडंडेंसी हो जाती है। तो इनको भी रिड्यूस कर सकते हैं। फिर हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं किसमें? 3n, क्योंकि ये सीक्वेंस होता है, पहले 1NF आता है, फिर उसके बाद 2NF आता है, और फिर उसके बाद 3NF आता है, फिर उसके बाद BCNF आता है, फिर उसके बाद 4NF आता है, और फिर 5। ऐसे सीक्वेंस में चलना पड़ता है अपन, ठीक है ना। हालांकि जो प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में जो यूज होता है, अभी जो प्रैक्टिकली वर्क करते हैं वो यहीं तक करते हैं, BCNF तक, ठीक है ना। Yes. ओके, तो अब 3NF में हमको डिवाइड करने से पहले हमको चेक तो कर लो ये 3NF में है कि नहीं है। पता लगा ऑलरेडी है, हम फिर कैसे करेंगे इसको? तो यू शुड चेक इट, इज इट इन 3NF और नॉट। तो अब ये कन्वर्ट करके डायरेक्ट दे दिया है, पहले इसको चेक करो, पहली वाली टेबल को चेक करो, दिस टेबल इज इन 3NF और नॉट। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, इज इट इन 3NF और नॉट? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आपको टेबल दी हो और आपसे पूछा जाए कि ये 3NF में है कि नहीं है, यही ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। और ऐसा भी बन जाता है, एक टेबल दे दिया जाए और पूछा जाएगा व्हाट इज द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म ऑफ दिस टेबल, व्हाट इज द हाईएस्ट नॉर्मल NF ऑफ दिस टेबल। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा वो, 1NF 2NF 3NF 4NF BCNF जो भी दे देंगे, ठीक है ना। Yes, sir. तो ये क्वेश्चन आपको करते बनने चाहिए। अब बताओ ये पहले 3NF में है कि नहीं है, एक्सरसाइज कैसे करोगे? कंडीशन क्या है 3NF का? सर वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, आपको याद है, अच्छी बात है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती कैसे है? इसमें मैंने बताया था कि जैसे आपके पास कोई की एट्रीब्यूट है और की है, की से कुछ आपने आइडेंटिफाई किया, एक्स वाई जेड जो भी आपने आइडेंटिफाई किया, दैट एक्स वाई जेड इज डिफरेंट फ्रॉम द की, ओके, एंड देन यू आर राइटिंग हियर अगेन एक्स वाई और एक्स कुछ भी, उससे कोई एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई किया जेड, दैट जेड इज अ नॉन की एट्रीब्यूट। ये क्या होना चाहिए? नॉन की एट्रीब्यूट। तो की से हम कहाँ गए? एक्स वाई से, एक्स वाई पे, और एक्स वाई से कहाँ पे पहुंच गए? जेड पे। इट मींस ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बनेगी कि नहीं? की टेंस टू जेड, ये ड्राइव कर सकते हैं हम। जैसे मैंने बताया था एक्स टेंस टू वाई है और वाई टेंस टू जेड है, तो एक्स टेंस टू जेड भी होगा। ये ट्रांजिटिविटी रूल होता है ना, ट्रांजिटिविटी रूल, Yes. तो उसके थ्रू डिटरमाइन करते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पे की टेंस टू जेड होगा। इट मींस दिस इज अ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ओके। तो ये नहीं होना चाहिए। तो चेक करो अपने डेटाबेस में ऐसा है क्या। चेक करो भाई, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बन रही है क्या? जैसे एम्प्लॉय नंबर, इट इज एन की, एम्प्लॉय नंबर से कोई एक एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करो और उस एट्रीब्यूट से कुछ दूसरे एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करो, सो देन देयर विल बी अ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इज इट हैपनिंग हियर? क्यों भाई, यहाँ पे है? नहीं समझ में आ रहा है आपको? फर्स्ट टेबल में तो आई गेस नहीं है। नहीं है, चलो सेकंड में बताओ। ये T1 हो गया और ये T2 मान लो, इसको T3 मान लो। चलो T2 में बताओ। यस, नहीं है? सर तीनों की तीनों यहाँ पे क्योंकि की कैंडिडेट्स हो जाएंगे ना। देखो यहाँ पे ये कैंडिडेट की हो गई, ये भी कैंडिडेट की हो गई, ये भी कैंडिडेट की हो गई। Yes, sir. तो ओके ना, यहाँ पे अपना ये कैंडिडेट की है। अब इसमें आपको ये भी बोल सकते हो कि जैसे IoT से पटेल
और सा ये भी आपको डिटरमाइन हो रहे हैं ना, तो ये भी तो कैंडिडेट की हो गए ना। यस, बाकी दोनों भी मतलब हाँ। तीनों के तीनों ही कैंडिडेट की हो गई हमारी। यहाँ पे एक भी कैंडिडेट की नहीं है इंडिविजुअली, सर। दोनों को मिला के ही कंबाइन ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इज इट ओके ना? हाँ, तो अब बोलो, अब बताओ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जब सारे के सारे एलिमेंट की हो, सारे के सारे एट्रीब्यूट्स की हो, तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो सकती है क्या कभी? नो सर। नहीं हो कभी नहीं। सकती। तो यहाँ पे तो है ही नहीं, तो इट मींस इट इज इन 3NF, ये तो गारंटी हो गया ना। Yes, sir. तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होने के लिए कम से कम एक नॉन की एट्रीब्यूट्स हो, तभी तो होगी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, वो तो है ही नहीं यहाँ पे यस सर। इसमें। सर ये भी हमारा फिर 3NF में हो गया क्योंकि 3NF में हो गया। अब इसको बताओ, तुम तो इसमें कह रहे थे सर डिपार्टमेंट कोड और डिपार्टमेंट नेम आपस में रिलेटेड है ना? डिपार्टमेंट कोड और डिपार्टमेंट नेम, बिल्कुल ये सही है, आप कह रहे हो ये दोनों की डिपेंडेंसी बन जाएगी। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कैसे बनेगी? मैं ट्रांजिटिव की कह रहा हूँ। हमें की से डिपार्टमेंट कोड पे पहुंचना है। पहुंचना है, वो भी इनडायरेक्टली पहुंचना है, ना कि डायरेक्टली। हाँ। क्या ये पॉसिबल है? अरे सिंपल यार, तुम देखो ना, एम्प्लॉय नंबर है, मैं ऐसा डिपेंडेंसी नहीं लिख सकता। एम्प्लॉय नंबर से मैं लिख रहा हूँ एम्प्लॉय नेम, यस सर। और एम्प्लॉय नेम से मैंने क्या लिखा? डिपार्टमेंट कोड। और डिपार्टमेंट कोड से डिपार्टमेंट नेम आ जाएगा। अच्छा, और ये तो वैसे ही है ट्रांजिस्टर में। हो जाएगी? यस सर, ये भी बन जाएगी कि नहीं? बन जाएगी सर। ये भी बन सकती है ना। यस सर। और हालांकि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई नंबर से डिपार्टमेंट कोड, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। यस सर। तो इस केस में तो नहीं होगी, ये डायरेक्टली बन रही है। इज इट ओके ना? यस सर। अगर ये डायरेक्टली बन रही है तो उस केस में हम उसको ट्रांजिटिविटी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? द क्वेश्चन इज दैट। नहीं बोलेंगे सर, डायरेक्टली बन रही है तो नहीं बोलेंगे। डायरेक्टली बन रही होगी तो हम जरूरत नहीं है बोलने की, फिर तो अपन डायरेक्टली उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, तो डायरेक्ट डिपेंडेंसी होगी, फिर वो ट्रांजिटिविटी नहीं कहलाएगी। अगर ये नहीं बन रही होती है तो उस केस में अपन उसको ट्रांजिटिविटी में कंसीडर करते हैं। अगर इसको ट्रांजिटिविटी में कंसीडर करोगे तो उस केस में आपको इन टेबल्स को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एम्प्लॉय नंबर से आप ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बना रहे हो, तो किससे बना रहे हो? डेट ऑफ बर्थ से बना रहे हो या एम्प्लॉय नेम से बना रहे हो, तो उसको सेपरेट करना पड़ेगा। बट इस केस में ये डायरेक्ट भी डिटरमाइन कर रहा है कि कोई भी की है, जैसे इंडिविजुअल की मान के चल रहे हो, डेट ऑफ बर्थ मान के चलो, एम्प्लॉय नेम मान के चलो, डायरेक्टली भी डिटरमाइन कर रहा है, तो इसको 3NF में तुम मान सकते हो। इज इट ओके ना? यस सर। ठीक है, तो ये 3NF का फाइनल डेटाबेस यहाँ पे दे दिया है इन्हें, ये हटा के इसको डिपार्टमेंट कोड और डिपार्टमेंट नेम को सेपरेटली। इज इट ओके ना? यस सर। ओके, तो यहाँ पे ये डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट कोड को इन्हें क्यों हटाया, इसका एक रीजन मैं बताता हूं। जैसे अपन ने यहाँ पे डिपेंडेंसी बनाई एम्प्लॉय नंबर से डिपार्टमेंट नेम, सॉरी डी नेम बनाया, और एम्प्लॉय नंबर से ये भी डिपेंडेंसी बनेगी, आपको याद है ना, ये तो दिख रही है ना यहाँ से। यस सर। एक डिपेंडेंसी ये भी हमको दिख ही रही है, डिपार्टमेंट नेम से डिपार्टमेंट कोड से डिपार्टमेंट नेम, या डिपार्टमेंट नेम से डिपार्टमेंट को, कोई भी एक मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ सकता, डी नेम, ये भी बनेगी। इस केस में ये ना तो प्राइम एट्रीब्यूट्स है ना ये प्राइम एट्रीब्यूट्स है, इसको बोलते हैं नॉन प्राइम को डिटरमाइन कर रहा है। क्या कर रहा है? एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, नॉन प्राइम मतलब जो एट्रीब्यूट्स विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स विच आर नॉट पार्ट ऑफ द की कैंडिडेट की। नहीं, जो एट्रीब्यूट्स की के पार्ट नहीं है उनको अपन क्या बोलते हैं? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, या नॉन की एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। कोई टर्मिनोलॉजी है, ये यूज कर सकते हैं दोनों ही। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जब किसी दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन करता है, तो उस केस में 100% वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है। जो किसी अभी पहले किसी ने बोले, आरुषि आपने बोला था ना पहले, डिपार्टमेंट को बोल रहा है, डिपार्टमेंट नेम को बोल रहा है। हाँ जी सर। हाँ, तो ये अगर केस मिल रहा है तो ये होगा। ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कैसे बनेगी? क्योंकि इस केस में ये डिपेंडेंसी अगर प्रेजेंट कर रही है तो एम्प्लॉय नंबर ये 100% है, इनडायरेक्टली थ्रू डिपार्टमेंट कोड भी डी नेम तक पहुंचेगा। इज इट ओके? यस सर। एम्प्लॉय नंबर यहां पे भी पहुंचेगा, इसका मतलब
ठीक है, ये कंडीशन मैंने स्पेशली जब 3NF पढ़ाया था तो उस टाइम पे मैंने मेंशन भी किया था, ये आप देख सकते हो यहाँ पे 3NF की जो डेफिनेशन दी थी वहां पे एक लाइन स्पेशली मेंशन की है डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पे ये लिखा है, देखो नाउ आई थिंक विजिबल इट दिख रहा है ना, यस सर। ये रेड कलर से जो लिखा है, लिखा है नो एनी नॉन की एट्रीब्यूट्स या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, डिटरमाइन एनी नॉन की एट्रीब्यूट्स लिखा है। यस सर। कोई नॉन की एट्रीब्यूट्स किसी नॉन की एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन नहीं करना चाहिए, जबकि अपने में कर रहा है। इज इट ओके? यस सर। अपने में कर रहा है ना, तो इसका मतलब वो भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज में आएगा। ठीक है, तो ये अपना जो पहला वाला केस था, अगर उस वाले केस की डिपेंडेंसी नहीं होती, ये वाली जो अपन कंसीडर कर रहे हैं, ये वाली डिपेंडेंसी नहीं होती यहाँ पे, अगर ये डिपेंडेंसी नहीं होती, ये डिपेंडेंसी नहीं होती, देन ये 101% ये 3NF में होता। ठीक है ना? तो इसके वजह से ये 3NF में नहीं। ठीक है, तो इसलिए अब इसको ये दोनों को हटा के सेपरेट बनाया जाता है टेबल, जो डिपेंडेंसी होती है उन्हीं को सेपरेट बना देते हैं। तो इनने 3NF में बनाने के लिए ये जो दोनों हटा लिए, ये सेपरेट टेबल बना दी, बाकी का इसका जो प्राइमरी की बनेगा वो इसमें ऐड कर दिया जाएगा टू मेक एट एज अ फॉरेन की, और ये यहाँ पे फिर क्या बनता है, फॉरेन की बन गया है, इसलिए रिलेशन बनाने के लिए। ठीक है, बाकी की रिमेनिंग 2 टेबल विल बी एज इट इज। ओके, तो अब ये डेटाबेस 3NF में आ गया और ये सफिशिएंट नॉर्मलाइज्ड हो गया। अब यहाँ पे कोई रिडंडेंसी आप नहीं बोल सकते ज्यादा, हालांकि 4NF BCNF में जाते हैं लेकिन अब उतना नहीं जाओगे, लेकिन काफी रिडंडेंसी अब यहाँ पे खत्म हो गई। अब देखोगे तो कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं यहाँ पे, 3x4 प्लस 2x2 प्लस 2x3 प्लस कितने आ रहे हैं यहाँ पे, 4x2 4x2, तो टोटल कितने हो रहे हैं, 12 16 6 22 कितने हुए, कितने हो रहे हैं, 30 हो रहा है। 30। अब इंडिविजुअल टेबल में ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड बढ़ रहे हैं, बिकॉज क्योंकि अपन को प्राइमरी की इंक्लूड करना पड़ रही है ना हर एक की इधर उधर रिलेशन बनाने के लिए। ये क्लियर है ना? यस सर। इसके लिए ये छोटा डेटाबेस था, इसलिए 30 से 32 से 30 ही रह गया, लेकिन बड़ा डेटा नंबर ऑफ रोज ज्यादा होती है रिडंडेंट नीचे, तो इसका इंपैक्ट ज्यादा दिखता। ये क्लियर है ना आपको? क्योंकि ये नंबर ऑफ रो ज्यादा होती, यूनिक होती, तो उसके कंपैरिजन में कॉम्बाइन टेबल करते तो वहां पर रिडंडेंसी में ये बहुत ज्यादा आ जाता। ठीक है ना? ओके, यस सर। इसलिए ये डिवाइड करने पे, क्योंकि डिवीजन 4 हो गए तो वैसे भी आपको एक कॉलम 4 बार तो रिप्लिकेट करना ही पड़ेगा, तो इसलिए ज्यादा रो बढ़ रही है, वैसे नहीं है। लेकिन रिडंडेंसी अब इंडिविजुअल टेबल में आप देखोगे तो आपको नहीं दिखेगी, इंडिविजुअल टेबल में आप देख लो। ठीक है ना? यस सर। इंडिविजुअल टेबल में नहीं होगी। ठीक है, ओके, तो ये 3NF तक कर दिया। ऐसे BCNF तक आके जाओगे, BCNF के लिए अपन को चेक करना पड़ता है कि लेफ्ट साइड का जो वैल्यू है जब एट्रीब्यूट डिटरमाइन कर रहे हैं वो तो की होना चाहिए या फिर सबसेट होना चाहिए, सुपरसेट होना चाहिए राइट साइड के एट्रीब्यूट्स का। जैसे लिखते हैं ना x टेंड्स टू y है, तो x शुड बी आइदर x इज अ की और x इज अ सुपरसेट ऑफ y, ऐसा कंडीशन है तो वो BCNF में होगा। इज इट ओके ना? यस सर। ठीक है, तो ये चीजें अपन करते जाते हैं, इस तरह से डेटाबेस नॉर्मलाइज हो जाता है। अब नॉर्मलाइजेशन में आपने ये तो देख लिया होगा, हम रिडंडेंसी रिड्यूस करते जाते हैं लेकिन टेबल मल्टीपल बनती चली जाती है। इज इट ओके ना? यस सर। यस सर। जब मल्टीपल टेबल बन जाती है, सपोज करो इस वाली टेबल में 1000 रिकॉर्ड है, इस वाली में भी 1000 रिकॉर्ड है, इसमें 2000 रिकॉर्ड है, इस टाइप से मान रहे हैं, इसमें 3000 रिकॉर्ड है, ऐसे रिकॉर्ड मान रहे हो, तो ये ज्यादा है रिकॉर्ड है, तो इसमें रिडंडेंसी तो ठीक है हमने कम कर दी, बट जब आपको कंबाइंड इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए, एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन चाहिए जो कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, उसका क्या डिपार्टमेंट का नेम है, उस कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है,
और उनके क्या कौन कौन से सुपरवाइजर हैं। तो आप क्या करोगे, अगर ये डिटेल चाहिए, फेच द डिटेल ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट है, एंड हु आर द सुपरवाइजर फॉर दैट प्रोजेक्ट, हाउ यू आर गोइंग टू फैच दिस इंफॉर्मेशन। अगर आपको मैं एसक्यूएल क्वेरी लिखने के लिए कहूंगा तो आप कैसे लिखोगे, बताओ। करना क्या हमें फाइनली, हमको एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन चाहिए, जिसमें एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, क्या नेम है उसका डिपार्टमेंट का, है ना, पूरी डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय चाहिए, हर एक एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए हमको। देन व्हाट यू विल बी गोइंग टू डू। यस, ज्वाइन। बिल्कुल सही है। आप इसमें क्या परफॉर्म करोगे, ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो ज्वाइन में आप क्या करते हो, जैसे आप लिखोगे स्लैक, जैसे ज्वाइन क्वेरी कैसे लिखोगे इसके लिए, स्लैक एस्ट्रिक फ्रॉम, कौन कौन सी टेबल लोगे, इसको मैं T1 दे दूं, इसको T2 दे दूं, इसको T3 दे दूं, इसको T4 दे दूं नाम। तो आप क्या करोगे, T1, T2, T3, T4 करोगे। वेयर ज्वाइन ऑपरेशन कैसे होती है, कोई बता सकता है। सर मतलब where T1 डॉट, एक तरीका होता है वेयर कंडीशन लगा के, एक डायरेक्ट आपको याद होगा नेचुरल ज्वाइन या ज्वाइन लिख, चलो ज्वाइन, यस हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा भी लिख देते हैं ना, फ्रॉम T1 नेचुरल ज्वाइन T2 T3, जैसे भी तो लिखते हैं ना, याद होगा। तो अभी मैं मान लो कैसे भी आप लिख रहे हो, ये आपके ऊपर है कैसे भी लिख रहे हो, लेकिन देखोगे भाई तो पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी हर एक एम्प्लॉय की। उस केस में क्या होगा, ये सारी की सारी टेबल्स का जो पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, फिर पर्टिकुलर कंडीशन अप्लाई होती है, तब कुछ कॉलम्स रो एलिमिनेट होती है, तब सारी डिटेल इंफॉर्मेशन फैच होगी कि नहीं होगी। यस सर, अगर ये 1000 तक है तब तो ठीक है, सपोज करो एक टेबल में रिकॉर्ड 1 लाख है, देन क्या होगा, आपको ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करने में कितना टाइम लगेगा, आपका क्वेरी प्रोसेसिंग बहुत स्लो होगा कि नहीं होगा। यस सर, उस केस में क्वेरी प्रोसेसिंग स्लो होता है, तो उस केस में हमको यूज करना पड़ता है डिनॉर्मलाइजेशन। डिनॉर्मलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि हम बैक प्रोसेस कर रहे हैं, कि नॉर्मलाइजेशन को खत्म कर रहे हैं, नहीं। तो डिनॉर्मलाइजेशन क्या होता है, जो क्वेरीज हम ज्वाइन ऑपरेशन कर रहे हैं, जो क्वेरी लिख रहे हैं ज्वाइन ऑपरेशन राइट करके मल्टीपल कॉलम्स मल्टीपल टेबल्स पे, तो वो हमारा परफॉर्मेंस क्या करती है, क्वेरी प्रोसेसिंग का टाइम या क्वेरी परफॉर्मेंस स्लो डाउन कर देती है नॉर्मलाइजेशन की वजह से, क्योंकि हमने टेबल मल्टीपल बना दी, बहुत सारी बनती चली जाती है नॉर्मलाइजेशन में। तो ज्वाइन ऑपरेशन जब परफॉर्म करेगा तो बहुत सारा टाइम लगेगा। तो डिनॉर्मलाइजेशन में क्या करते हैं, कुछ इस टाइप से प्रोसेस करते हैं, इन टेबल्स में कुछ ऐसी वैल्यूज डाल देते हैं जिसके बेसिस पे हम जब ज्वाइन करने जाते हैं तो वो टाइम कम हो जाता है। जैसे सपोज करो, अगर मैं ये पहली वाली टेबल देखो, एम्प्लॉय वाली, एम्प्लॉय टेबल में मैंने क्या रखा है, डिपार्टमेंट कोड, इज इट ओके ना। यस सर, अगर मैं इसमें एक कॉलम और ऐड कर दूं डिपार्टमेंट नेम का, मेरे को कितने डेटा फिल करना पड़ेगा, एक तो सी आ जाएगा यहाँ पे ईसी आ जाएगा और यहाँ पे सी आ जाएगा, यही तो फिल करना होगा बस। डिपार्टमेंट कोड तो ऑलरेडी है, एक ही कॉलम तो ऐड किया मैंने। अगर मैं प्रीवियसली बिफोर एडिंग दिस कॉलम, इफ आई आस्क यू टू फैच द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट along with the employee, then what you have to do, you have to perform the join between T1 and T2। लेकिन अब मैंने जब ये कॉलम इसी में ऐड कर दिया तो इस टेबल का तो कोई मतलब नहीं रह गया ना। यस सर, तो जो भी इंफॉर्मेशन मेरे को चाहिए वो मेरे को इसी से मिल जाएगी कि नहीं, T1 से। तो मेरे को ज्वाइन परफॉर्म करना पड़ेगा क्या। नो सर, नहीं तो सर। मैंने कितना डेटा ऐड किया, बहुत थोड़ा सा ही तो ऐड किया। तो मैंने थोड़ी सी रिडंडेंसी इंट्रोड्यूस करके थोड़ा सा डेटा ऐड कर दिया और मैंने ज्वाइन परफॉर्म नहीं करना पड़ा, जिससे मेरा टाइम 50% कम कर दिया सपोज करो। तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि नहीं है, क्योंकि जब डेटा हमारा डिफरेंट सर्वर रिमोट लोकेशन पर होता है तो वहां पे टाइम बहुत मैटर करता है, ओके ना। और उसमें थोड़ा सा ही इंट्रोड्यूस करना पड़ा, ज्यादा नहीं करना पड़ा, बहुत थोड़ा सा। तो उस केस में हमारा टाइम बहुत कम हो जा रहा है, ज्वाइन परफॉर्म ही नहीं करना पड़ रहा है, हमको डेटा बहुत जल्दी मिल जा रहा है। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिनॉर्मलाइजेशन। तो ऐसा ही डिनॉर्मलाइजेशन किया जाता है और देखा जाता है कि हमको थोड़ी सी रिडंडेंसी रिड्यूस करें और हमारा क्वेरी प्रोसेसिंग टाइम
बहुत कम हो जाए, परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हो जाए। इज इट ओके? यस सर। ठीक है, तो डिनॉर्मलाइजेशन की मेरे पास एक सेपरेट स्लाइड है, और ये मैंने अभी जो समझाया है वही चीज उसमें थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है, पढ़ सकते हो आपके लिए मैं। तो अभी टाइम कितना हुआ है? सर 3:30 हो गया। 3:30 हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट टाइम पे मैं जस्ट उसको ब्राउज करूंगा, ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे और डायरेक्ट अपन उसमें PLSQL स्टार्ट करेंगे। ये मैंने इसलिए टाइम ज्यादा लिया है आज कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें क्लास अटेंड नहीं किया, तो मैंने कि थोड़ा सा उनको लग जाए, जिससे अब वो पढ़ेंगे ही ना तो समझ में आ जाएगा उनको। इज इट ओके ना? यस सर। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का मैंने ओपन तो कर लिया था वो डिनॉर्मलाइजेशन का, बट ये स्लाइड है जिसमें मैंने थ्योरी और एग्जांपल भी लिया है कि कहाँ पे कैसा होगा और क्या अप्रोचेस होती हैं डिनॉर्मलाइज करने की। तो ये 20 स्लाइड्स हैं, तो आज वैसे टाइम ले लिया इसलिए ज्यादा नहीं खत्म कर पाए, कोई बात नहीं है। तो नेक्स्ट में ये खत्म हो जाएगा, देन अपन PLSQL स्टार्ट करेंगे। ठीक है, PLSQL में मेरे को 4 क्लास चाहिए, तो आपका PLSQL फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। ओके। सर हाँ बताओ। सर एक ना क्विज को लेकर एक सजेशन था। हाँ बताओ। सर लास्ट वाली क्विज में ना हमारे जो क्वेश्चंस थे, पहली बात तो वो भी थोड़े लंबे थे, प्लस हर एक ऑप्शन वेरीफाई करना पड़ रहा था जस्ट टू चेक की ना एक आंसर के लिए, तो उसके हिसाब से टाइम लिमिट थोड़ी सी कम थी। लाइक हमको अगर हमारे 5 देखो, मिनट एक्स्ट्रा होते हैं। मैं बता दे रहा हूँ, टाइम लिमिट का रीजन ये होता है कि तुम्हारे साथ में पता है CSE बच्चे भी दे रहे थे एग्जाम, यस और सर। CSE बच्चे आप समझो कि वो सब चीजें पढ़ रहे हैं और सब इतने सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो स्मार्टनेस आप समझ लो कि चीटिंग बहुत होने के चांसेस बहुत हैं। तो ये मैं जानता हूँ कि टाइम थोड़ा सा कम है, और वो सर भी कह रहे थे कि टाइम थोड़ा, और कई बच्चों का तो बहुत सारा प्रॉब्लम भी आया, सबमिशन के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है ना? सर मेन बात ये थी कि हल्का हल्का ऑप्शन में फर्क था, तो वो जल्दी जल्दी में एक ऑप्शन था मैं दूसरा। समझ गया, मैं समझ गया, वो चीजें आप समझ रहे हो, ये चीज सही बोल रहे हो आप। देखो टाइम थोड़ा सा कम था, चेक करना पड़ रहा था, ये सही बात है। यस। लेकिन वो मेरे को लग रहा है, मैंने सर से बोला भी था इस टाइम की बात किया था, लेकिन बोल रहे थे कि बच्चे एक साथ दे रहे हैं, बच्चे ऐसे हैं कि आपको चीटिंग इतना जबरदस्त हो जाएगा, जगह से भी टाइम दे दिया। तो बोले कि थोड़ा सा कम रहने दो, तो वो सबके लिए इक्वलेंट कम होगा। तो अगर कम नंबर आएंगे, जो टॉपर है उसके सबसे कम रहेगा, मान लो अच्छी ईमानदारी से किया उसने, कम रह गया नंबर, तो रिलेटिव मार्किंग है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिलेटिव मतलब जो हाईएस्ट आएगा, यस। हाईएस्ट वाले का कम ही रहेगा ना। 15 का मार्क्स का क्वेश्चन है, वो क्विज है, तो 15 वाले के सब उसने विदाउट चीटिंग नॉर्मल किया, उसने अटेम्प्ट ही मतलब 12 क्वेश्चन कर पाए, तो उससे ज्यादा कोई कर ही नहीं पा रहा, तो वहीं से तो ग्रेडिंग बनेगी, यस। है कि नहीं? तो इसलिए उनने ये कह दिया कि सबके लिए इक्वल है, वो तो ऐसा तो है नहीं कि एक के लिए कम एक के लिए ज्यादा है। तो कोई बात नहीं, वो तो आएंगे तो सबके कम आएंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबके कम हो रहे हैं तो। लेकिन वो चीटिंग को रोकने के लिए थोड़ा सा टाइम लाइन स्ट्रिक्ट करके रखी उन्होंने, ये मेरे को स्पेशली बोला उन्होंने। ठीक है सर। ठीक है ना? तो आप कोशिश करना, तो इस बार का जो क्विज होगा प्रिपेयर्ड होके जाना, क्योंकि ये पहला था और बेस्ट ऑफ 2 जाना है मतलब। ठीक है ना? तो अगर पहले वाले में थोड़ा सा मार्क्स अच्छे भी नहीं आए हैं, कितने आए हैं आप लोगों के? सर मुझे शायद 7 थे मेरे। 7। और आपके कितने हैं आरुषि? मेरे भी सर 7 है। तारू आपके? तो 7 ही है मेरे। तीनों के 7 7 तो थोड़े कम है यार, 50% मार्क्स आ रहे हैं अराउंड, मेरे हिसाब से 10-12 अराउंड आप सोचो कि उतने होना चाहिए। सर ठीक है, मतलब इस बार वही अप्रोच ही यही रखनी है कि 10-12 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए, 15 की कोशिश। 15 है तो आप 12 तक अटेम्प्ट कर लो, कोई फर्क, क्योंकि सब कोई बाकी के लोग भी तो नहीं कर पाएंगे ना, अगर वो कर रहे होंगे तो। होता है कि नहीं? यस सर। लेकिन टाइम कम बढ़ाने से चीटिंग ऐसा होगा कि आपने 7 की जगह 10 कर लिए, लेकिन सब 15-15 कर जाएंगे। ओके सर। ठीक है ना? ठीक है सर। समझ में आ गया ना? तो फिर यस सर। टाइम बढ़ाने का कोई मतलब भी नहीं निकलेगा, तो इसलिए